So, good afternoon, good morning, and welcome to this lecture of digital electronics, in which we were trying to study the simplification of Karnaugh maps. Yesterday, we have completed almost all types of, say, uh, I guess I have there. I guess my screen is visible to you, and we have done this much of simplification, right? So, right. So yeah, we were studying simplification of digital circuits by using Karnaugh map, and yesterday we have completed almost two or three variables application. So I will just brush it up. So this was some of the advantages of that Karnaugh maps, K-map collection of squares, and this was for the two variable circuit. So we were having x and y as two variables, and the truth table is like this: xy equal to 0, 0, 0, 1, 1, 0, and 1, 1. And the function, the output in which we require high is 1, 1, and 0, 0. According to this equation, f equal to summation of m0, m1, and that is given by x complement y plus x complement y complement, right? So accordingly, we have substituted the number of ones or where we require the output should be high over there. And these are some more examples where we are just substituting the number of ones, right? So we have done almost these things. How to place ones over there, and on the left hand side it is MSB, and on the upper side it is LSB, right? So for three variable we will have eight blocks over there accordingly, and we are putting like 0, 1, this is 2, and this is 3, and 4, 5, this is 6, and the last one is 7, right? So this one is the 7, the center one. So this is what we have studied, and then we have started encircling those things and trying to minimize the terms. So on that note, we have done with, say, we have to start with to find out how many octet we have. Octet means the number of combination of eight, right? So that those are called as octets. So octets we will search first, and if there are no octets, then we'll go for quad. Means we'll make a square, or we will line up the number of ones, right? So number of ones may be horizontal, maybe vertical, or say maybe in a square accordingly. But we are not going to go for the cross things, right? So cross ones. So yeah, so this is how we were simplified. So since it is one which are adjacent to each other, so they are not able to find a pair. So after quad we will search for pair, and after that we will write a single number one. Right. So here you are able to see that there are no pairs, so they are singles, and therefore the equation can be minimized to AB complement plus A complement B. Right. So that will be the final equation over there. Accordingly, here if you are able to see, we are having the equation F equal to AB A complement B plus AB complement, and we have substituted 1, 1 over here. And if you go through that, we will have two pairs, and accordingly by one pair we will be reducing one of the variable, right? So we will have the ultimate equation F equal to A plus B, right? So yeah, so this is what we mean by, say, reducing equation. uh, yeah, I'm going for that only, just hold on for a second. So yeah, for three variables we will have this equation. So this equation stands for, say, ABC. Now the equation that was given over there was this, and the equation that is being minimized, so we are having one quad over here, so number of four ones. So this can be one of the type which we can have. Then we have two pairs like this, and accordingly we will be having equation. So if you have a quad, then two say variables are being eliminated. So for that we will have only A over here. Then for pair we will have one variable which is going to be eliminated. So we are having these things. So F equal to A, that is for quad, and B complement C which is for
this one. So A complement get reduced over here, and here we will have B complement C. In the second pair, we will be having B C complement, right? So these are for the three variables, and so on. We can go for the other variables also. So this is for say corner, and now here it is shown that we can have a overlapping also. So this can be overlapped with the pair can be formed like this, and the pair can be formed like this. So this is right, and these are some more examples where we can encircle those. So the pairs can we can have overlap of pairs, right? So yeah, so these are some of the examples. Now let us go to the board and let us check. I guess my board is visible to you, and we'll try to do those things and we'll try to solve them. So let us start with this. So what I mean to say is if we are having a two variable A and B and F, that is function, or we were writing earlier as Y. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. हेलो, अभी आ रही है बेटा? यस सर. तो मुझे बताते रहिए अगर नहीं आती है। तो ए और बी दिख रहा है, ए और बी, और पहले हम लोग लिखते हैं y एज अ फंक्शन, अब हम लोग लिख रहे हैं उसके जगह पर f, बराबर है? दिख रहा है क्या? और ये जो दो वेरिएबल है इसके पॉइंट 0 0 0 1 ऐसे लिखते थे हम लोग, और अकॉर्डिंगली वी आर हैविंग द ट्रुथ टेबल। सो एंड गेट और गेट का ट्रुथ टेबल हम लोगों ने ऑलरेडी इसको बनाया, राइट? अब हमारे पास जो फंक्शन था उसको हम हमारे हिसाब से हमको अब इसी में अगर सर आवाज नहीं आ रही है आपकी. हेलो 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 बेटा, तुमको ही नहीं आ रही है कि बाकी सबको भी नहीं आ रही है? सबको आ रही है क्या? No sir, your voice is not loud and clear. क्लियर नहीं है? अच्छा, इन दैट केस व्हाट शुड आई डू? अभी आ रही है क्या? हेलो हेलो, यस सर. अभी आवाज क्लियर आ रहा है? Yes sir. ओके ठीक है, ये थोड़ा सा मैं इधर घूमूंगा तो शायद हो सकता है कनेक्शन का हो। ठीक है, तो ये दिख रहा है कि आपको अभी आ रही है आवाज? हेलो, इट इज कनेक्टेड टू अभी आ रही है आवाज क्लियर? हेलो, यस सर. ओके, so we are having two variables. So two variables के लिए मैंने कहा था this is MSB. MSB बोला तो most significant, हम लोग कभी कोई नंबर लिखते हैं सर बहुत कम है आवाज। सर बहुत स्लो आ रही है आवाज। लो बोले तो कैसे? नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। लो मतलब धीरे 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 ऐसे आ गया है ना? हेलो, बराबर है क्या? ओके सर, अभी ठीक है? तो मैं बोल रहा था कि हमारे पास अगर ये नंबर है 1 2 6 7, study read this one as 1267, ये डेसिमल के नंबर के बारे में बता रहा है। तो इसमें ये जो है ये LSB है, लिस्ट टेंस यूनिट के बेस पर, और ये जो है वो MSB है, मोस्ट सिग्निफिकेंट, ये 1000 के टर्म पर है ना, इसलिए हम लोग इसको MSB बोलते हैं, इसको LSB बोलते हैं, बराबर? तो ऐसा ही MSB LSB वाला सिचुएशन हमारे यहाँ पे MSB है और ये LSB। इसी प्रकार अगर हम लोग इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं और इसके लिए हो और C और ये A हो, तो अब कितने फैक्टर ये बनेंगे अपने 8, राइट? और उसके बाद 0 0 फिर चलेगा 1 0 1 1 0 1 1 ऐसे करके अलग अलग टर्म्स के लिए अलग अलग। इसी प्रकार अगर हम लोग 4 वेरिएबल के लिए लेते हैं तो 4 वेरिएबल के लिए हमारे पास 3 का पैटर्न है। If I want to number this, if I want to number this, so how could I number this?
5, 6 और 7 this is serial number, right? और decimal की values भी है, 0 value है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12, 13, 14, 15, 16, ऐसे हमारे पास पूरा 4 वेरिएबल का भी है, राइट? सो ये जो डेटा है, इस डेटा को अब सबसे पहले जब मैं बोल रहा हूँ कि स्क्वायर टू वेरिएबल्स के बारे में हम जब बात कर रहे हैं, तो टू वेरिएबल्स में हमारे पास सिर्फ 4 का ब्लॉक बनता है, राइट? 1 2 4 ऐसा। अब हम लोग अगर ए और बी लेते हैं तो ए और बी बारे में सोचते हैं, ए और बी, राइट? इसमें सबसे पहले टर्म 0 रहती है, ये 1 रहती है, ये 1 होता है, और उसके बाद हम लोग चालू करते हैं, तो 0 0, 0 वाला ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, राइट? और इसको अगर मैं वैल्यू दूं तो ये वैल्यू आती है 0, यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, दिस इज रिटन एज 0, ये दिस इज रिटन एज 1, दिस इज रिटन एज 2 और दिस इज रिटन एज 3, राइट? सो ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इसकी वैल्यूज 0 1, right? So accordingly, we will have this type of pattern. Similarly, 2 variables or 3 variables. यहाँ पर जो LSB है वो यहाँ होता है, LSB इस प्रकार का पैटर्न होता है, राइट? इसमें एक ही चेंज ऐसा है कि जब हम लोग इसको लिख रहे हैं तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से 0, this is 1, this is 2 and this is 3, वैसे ही 4 4 5 6 और उसके बाद ये 7, याद रखिए दिस इज 0 1 इधर 2 इधर 4 5 6 और फिर 7, राइट? और लिखते वक्त हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट सी, फिर राइट? तो ऐसा बनता है और ये बनेगा ए कॉम्प्लीमेंट और ए, इसके हिसाब से वो फंक्शन हमारे को वहां पे लगाना पड़ता है, ठीक? तो ये हो गया 3 वेरिएबल्स का, हम लोग अभी देख रहे थे। इसी के साथ अगर 4 वेरिएबल्स वाला आता है, 4 वेरिएबल्स के लिए हमारा जो ऐसा, राइट? तो यहाँ पर जो टर्म है वो सीबी एलएसबी और यहाँ पर जो टर्म है वो एबी एमएसबी, राइट? और अब अगर मैं इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये आएगा 0 1 then 2 then 3, यहाँ से चालू करेंगे 4 5 6 और फिर 7, यहाँ पर नीचे से चालू कर रहा है, रिमेंबर दिस, राइट? माइक मेरा यही है, ओके? तो मैं यहीं पे बात कर रहा हूँ, तो 4 5 6 और 7, इसके बाद यहाँ से चालू करें, 8 9 so remember this, I have started from here 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद हम लोग नीचे जा रहे हैं, तो यहाँ पे नीचे अगर हो गया तो 8 9 ये 10 11 फिर 12 13 14 और 15, so this is the last one, that is 15. Remember this. So this is a pattern which is being say used for a 4 variable system. ठीक, ये समझा क्या? यहाँ तक ये समझ में आया? ये नहीं हो रहा है, ये नहीं होगा। हेलो, अभी भी मेरा वॉइस कट रहा है? इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं 4 वेरिएबल्स का। सो आपको 2 वेरिएबल्स 3 वेरिएबल्स और 4 वेरिएबल्स के ही कॉर्नर मैप है और उसके बाद वी आर गोइंग टू सॉल्व, राइट? जैसे अभी हम लोगों ने ये 3 वेरिएबल्स का किया था, राइट? सो आई हैव रिटन ओवर देयर, फिर हम लोगों ने इसका
and accordingly now we are trying to write the A बचता है तो A प्लस फिर आता है ये वाला, तो इसमें A कॉम्प्लीमेंट और A कैंसिल हो जाता है, बचता है B कॉम्प्लीमेंट। लास्ट वाला जो बचता है यहाँ से A और A कॉम्प्लीमेंट ये रिड्यूस हो जाता है, राइट। तो इस प्रकार से इक्वेशन बन गया। अब नाउ फॉर दैट वी नीड टू इंप्लीमेंट दैट इक्वेशन। तो इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करेंगे, A, राइट। फिर ऐसे हो गए दो, बराबर। तो तो इस प्रकार से मैंने लाइंस ले लिए है, ये A है, ये B है, B का कॉम्प्लीमेंट C है, C का कॉम्प्लीमेंट। नाउ आई विल गो एंडिंग एंड फॉर एडिंग लास्ट थिंग। तो ऐड और एंडिंग करने के लिए मेरे पास कैसे करना है, मुझे इसको मैं बताता हूँ। तो एंडिंग करना, नाउ तो A जो कॉम्प्लीमेंट C, करना है, इसके लिए मैं I guess it is visible, right? So this is how you are supposed to implement the circuit by using this KMAX. So we have reduced this circuit. Already the circuit was very big, और अगर हम लोग उसको ये करना चाहते हैं तो क्या होता है उसका, वो बहुत ही बड़ा सर्किट बनता है, right? तो अभी क्लियर है, मेरा आवाज क्लियर है? So this is what is expected from your side to say थैंक यू। तो अभी थोड़ा सा क्लियर आया था शायद। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज के मैप। आई गेस यू हैव अंडरस्टूड। नंबर्स कैसे सब्स्टिट्यूट करना है ये भी आपको समझ में आया है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है। सो अभी आप अगर मेरे बोर्ड के तरफ देखें तो ये वाला दो वेरिएबल वाला है, दो वेरिएबल में दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ये 2 वेरिएबल्स के लिए है। मैं डायरेक्टली नंबर्स बता रहा हूँ आपको, सो दैट यू विल रिमेंबर दैट। और ये लिखने का कैसे पैटर्न है वो। सो दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट सी, बी सी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज ए। अगर मैं उसको नंबर के हिसाब से लिखूं तो दिस इज 0 1, यहाँ 2 आएगा, इधर साइड 3 आएगा सेंटर। फिर यहाँ से चालू कर रहा हूँ 4 5, दिस इज 6 एंड दिस इज 7, राइट। सो दिस इज फॉर 2 वेरिएबल। 4 वेरिएबल के लिए आई एम राइटिंग LSB ऑन द अपर साइड, सी डी यहाँ पर और ए बी यहाँ पर। तो सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट डी, सी डी एंड सी डी कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद यहाँ पर ए बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए बी एंड ए बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। और अगर नंबर्स के हिसाब से देखें तो 0 1 2 एंड 3 4 5 6 एंड 7। इसके बाद 7 के बाद हमको नीचे वाले रो में जाना है, यहाँ पर 8 9 10 एंड 11। फिर उसके बाद 12 13 14 एंड 15। सो ये जो पोर्शन है, ये जो सर्कल किया है, ये वाला हमारे इसमें लास्ट वाला है, सेंटर पर आता है। इसको हम लोग ओवरलैप भी कर सकते हैं। याद रखना, ओवरलैप मतलब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो ये दोनों का भी पेयर बन सकता है, क्योंकि हम लोग उसको ऐसा फोल्ड करते हैं, राइट। तो ये से फोल्ड किया तो इसका और इसका पेयर बन सकता है। वैसे ही यहाँ का और यहाँ का भी पेयर बन सकता है, हम लोग उल्टा भी फोल्ड कर सकते हैं ऐसा। तो वो जो भी पेयर बनेगा आपको उसको नोटिस करके उसको यूज करना।
I guess you have understood this K map. If you have any issues, if you have any problem, you can ask me on that. सर आपने जो टू वेरिएबल सर बेटा? आपने जो टू वेरिएबल का बताया है, हाँ जी, सर वो इक्वेशन कैसे बना, वो एक बार बताइए ना। इक्वेशन बेटा, इक्वेशन बना नहीं है, इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ था आपके इसमें। देखो मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने आपको एक सेकेंड, हाँ ये वाला। हाँ, तो इसमें हमारा जो ये इक्वेशन है ना, दिस इक्वेशन वाज ऑलरेडी गिवन, ये इक्वेशन दिया हुआ है ना। ये कहाँ था, हाँ यहाँ पर ये इक्वेशन क्वेश्चन में दिया है। सो f इज इक्वल टू ए बी कॉम्प्लीमेंट एंड a कॉम्प्लीमेंट b, ये दिया हुआ है आपको, आपने उसके हिसाब से टेबल बनाया है। या यहाँ पर क्लियर होगा शायद वो, यहाँ पर ये ट्रुथ टेबल में आपको दिया हुआ है, तो आपको ये इक्वेशन क्वेश्चन में दिया है, और उसके बाद आपने उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, और उसके बाद आपने ऐसा के मैप का पैटर्न बनाया, और के मैप के पैटर्न में आपने वो नंबर ऑफ वन सब्स्टिट्यूट, समझा। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन दिया हुआ है। एंड गेट का इक्वेशन आपके पास डिफाइंड है, एंड गेट का इक्वेशन आपको चेंज करने की जरूरत नहीं, समझा। एंड गेट ये जो इक्वेशन है, ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है। समझ में आ रहा है क्या, समझा क्या रिंकी? यस सर, यस हाँ, सर। ये क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। और आप लोगों को उसको सिर्फ मिनिमाइज करना है। जैसे अभी मैंने इसके नीचे के क्वेश्चन ये बताया है, तो ये देखिए, ये 3 वेरिएबल के लिए ये जो इक्वेशन है ये दी है, और इस इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पर हम लोगों ने नंबर ऑफ वन सब्स्टिट्यूट किए। आप देखो ABC, ये ABC है, ये नीचे आ गया, देखो 1 है, ठीक है। ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, अब जब कॉम्प्लीमेंट हम लोग ले रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है 0, तो ये A1 है, B और C 0 0, D कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट। तो आप देखो यहाँ पर ये 1 0 0, तो दिस ये जो वेरिएबल है, ये जो फंक्शन दिया है, ये फंक्शन ये वाला है 1 0 0, यानी जहाँ पर A1 है, B और C 0 0, राइट। तो इसके वक्त हमको 1 लेना। ऐसा ही आप सभी इक्वेशन को देखो तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम्स 1 है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 1 है, और 2 टाइम्स 0, यानी रेस्ट जो बचे हैं वो 0 हो जाते हैं, राइट। सो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे के मैप में सब्स्टिट्यूट करना है, और उस के मैप को आपको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करते वक्त हम लोगों ने ये ऐसे इक्वेशंस लिखी है, देखो ऐसा। तो ये के मैप है। अब हम लोगों ने क्वाड ढूंढा, फिर उसमें पेयर्स दिखे, तो मुझे 2 पेयर्स दिखे, और उसके बाद मेरी इक्वेशन बनती है ये। तो F इक्वल टू A प्लस B कॉम्प्लीमेंट C प्लस BC कॉम्प्लीमेंट। तो जो इक्वेशन वहां लिखी हुई है, वो वाली इक्वेशन यहाँ पर, ये वाले इस पे जो लिखी है, वो इक्वेशन सेम है। ये इक्वेशन क्वेश्चन में दी थी, आपने रिड्यूस करके इतना बनाया, फिर उसको आपको सर्किट बनाना है, तो वो सर्किट आपको वहां पे मैंने बनाकर दिखाया कि इसका सर्किट कैसे बना, राइट। ये कुछ और एग्जांपल्स है, और ये मैं ओवरलैपिंग के बारे में बता रहा था कि ये ओवरलैप इसके साथ हो रहा है। अगर इधर 1 है और इधर भी 1 है, तो ऑटोमेटिकली ये ओवरलैप हो जाते हैं, राइट। अच्छा, और एक यहाँ पर एक और बहुत अच्छी चीज बताई है। हाँ, यहाँ पर देखिए 0 4 4 5 7, यहाँ पे नंबर दिए हुए, जो नंबर्स हम लोग अभी बोल रहे थे वो नंबर्स दिए, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। देखिए यहाँ पे 0 है, ये 0 1, ये 2 है। अच्छा, ये ABC है ना यहाँ पर, तो ये मेरे ख्याल से उनके सीधे दिए हुए, तो 4 5 7 की जगह पर ये है 4 5 और 7, ऐसा दिया 5 और 7 ऐसा। सो दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7, ये रोटेट करके दिया हुआ है शायद। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पे कभी कभी नंबर्स भी देते हैं, याद रखना, तो ये नंबर्स के हिसाब से भी आपको प्लॉट करना होता है ना। तो ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, कैसा करना है करके, ठीक। और उसके हिसाब से आपको इक्वेशंस बनाना है, राइट। यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया हुआ है। हाँ, ये एडर सर्किट का इक्वेशन दिया है, ये सम का है, ये सी आउट का है। दिस एडर इज क्या कहते हैं उसको, 3 वेरिएबल्स का एडर है, फुल एडर का सर्किट। फुल एडर का ये इस प्रकार से इक्वेशन बनता है, फिर आप लोग उसको सॉल्व करते हो, के मैप से सॉल्व करते हो,
आपको उसको एक एक इसके लिए इक्वेशन आते जाता है, राइट। तो ये ऐसा पेयर ये बनाकर आप लोग उसको राइट, तो ऐसा आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इज के मैप। आई गेस यू हैव अंडरस्टूड, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन चैट विथ मी और यू कैन लेट मी, राइट। हेलो, कोई क्वेश्चंस? Any questions on this? Thank you, Manish. All the best for your exam. I will try to submit all that, say, uh, PPTs to you so that you will be able to study them, right? Okay. Thank you, Rinki. So, thank you all for joining this semester one, and wish you all the best for your exams. Bye now. Stay home, stay safe, take care, and please be cautious and say take as many precautions as you can, because this COVID-19 is not yet over and there are more possibilities on that. So please be sure. Thank you very much. See you soon. Bye in the next class. Good day.